وہ مقامات جہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہوتے ہیں، مرجع خلائق ہوتے ہیں، جہاں سے فیض جاری ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وہ مقامات بھی جہاں اولیاء اللہ کے تبرکات اور ان کے استعمال میں رہی اشیاء محفوظ کی جاتی ہے، زیارت گاہ بن جاتے ہیں، برکت و فیوز کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ ریاست کرناٹک ضلع بیدر کا چھوٹا سا موضع بگدل بھی ایک ایسا مقام ہے جو حضرت سید خادر ولی گنج سوائے گنج بخش ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات اور ان کے نام سے موسوم درگاہ کے سبب ہندوستان ہی نہیں بلکہ انڈونیشیا، جاپان، بنگلہ دیش، عراق، امریکہ اور دیگر ممالک میں بھی مشہور و معروف ہے۔ ملک و بیرون ملک سے ہزاروں زائرین اس عظیم و شان درگاہ کی زیارت کو آتے ہیں اور اپنے دل کی مراد پاتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرت ادریس قادری بگدلی بنا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہمارے پیر کا فیض ایسا ہے کہ جو بھی آدمی آتا ہے یہاں جو بھی تکلیف ہے اس کی پورا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 2000 میں میرے کو پیرالائز کا ڈبل اٹیک آیا ہے۔ ڈاکٹر نے میرے کو بولا تھا نو گارنٹی، 2000 میں نو گارنٹی۔ اس کے بعد میں میرے سرکار کا کرم ایسا ہو گیا، میرے بولے تیرے کو بورس کی زندگی ہے۔ میں آج 2017 سال چلا ہے، مگر آج جی رہا ہوں۔ بمبئی سے میں ہر سال میں آتا ہوں اور جیتا ہے۔ یہی کرم ہے ان کا، جو آدمی یہاں یقینہ رکھے گا اس کو فیض ملتا ہے۔ یہاں غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، سب آتا ہے، سب ایک جیسے ہے، سب کو یہاں پر فیض ملتا ہے۔ پورے ہندوستان میں کدھر اس طرح نہیں ملے گا، خالی اپنے ٹکٹ بھاڑا یہ کر کے یہاں پر آؤ، یہاں تمہارا کھانا پینا سب رہنا سب مفت میں ملتا ہے، اور اس کے ساتھ میں تمہاری جو تکلیف ہے تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سید خادر ولی گنج سوائے گنج بخش کے نام سے موسوم اس درگاہ کی تعمیر شاہ خلیفہ الحاج محمد ادریس احمد قادری بگدلی نے کروائی اور مزید تعمیراتی کام جاری ہے۔ حضرت سید عبدالقادر شاہ ولی گنج سوائے ناگوری حسینی و الحسنی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل شیخ المعارفین حضرت ابو یوسف سیدنا الحسن قدسی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت فاطمہ بنت سیدنا حمید الدین ہے۔ حضرت سید خادر ولی رحمۃ اللہ علیہ کا قد و قامت درمیانی تھا، رنگ گندمی تھا، بال لمبے تھے، بھویں کالی تھیں، آنکھیں بڑی اور کشادہ تھیں، ناک اونچی تھی، دانت بالکل سفید تھے، چہرہ حشاش بشاش تھا، نہ بہت زیادہ موٹے تھے نہ دبلے، کبھی ٹوپی پہنتے تھے، کبھی امامہ، کبھی قمیص زیب تان کرتے تو کبھی چادر اوڑھتے تھے۔ میرا نام محمد فضیل احمد ہے، میں حضرت کا نواسہ ہوں۔ میں جب سے یہ ہمارے گھرانہ بغداد شریف کا آیا اور الحمدللہ اور روشن ہوا ہے، انشاء تعالیٰ ہندوستان میں تو روشن ہے، ہمارے گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا کو نوازا ہے علم سے، انشاءاللہ ہر جنا ان سے فیض ہو کے گیا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بھی دعا ہے۔ آپ کو موٹا لباس پسند تھا، عصا لے کر چلتے تھے، کئی دن مسلسل روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ پھل پھلاری اور میٹھے سے اگرچہ انہیں رغبت تھی لیکن عیش و نام سے بچتے تھے، اور جب یہ چیزیں انہیں ملتی تو اپنے خدمتگاروں اور ساتھیوں کو بھی ان میں شریک کر لیتے تھے۔ عیش پرست لوگوں سے نفرت کرتے تھے، فقیروں اور سادات سے رحم کا سلوک کرتے تھے اور انہیں عبادات کی ترغیب دیتے تھے۔ بہت کم سوتے تھے اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو کچھ آرام فرما لیتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ والدین کے فرما بردار تھے اور دل و جان سے زیادہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کی سعی و کوشش فرماتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور مسواک کرتے تھے۔ میں شیخ ہاشم الدین پیر گیلانی کا مرید ہوں، اور حاجی خلیفہ ادریس صاحب
جن کے میں بہت ادب کرتا ہوں، اور جو ہے جو سجدہ نشین ہے یہاں کی ولی اللہ ہے، اور میرے پیر شیخ ہاشم الدین پیر گیلانی فرماتے ہیں جو بغداد شریف کے سجادہ نشین ہیں آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں کہ جو ہے آپ خلیفہ صاحب جو ہے غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ تو کرامت تو جو ہے یہاں کے ہر لوگ جانتے ہیں آپ کی کرامت، اس کے علاوہ بھی جو ہے خلیفہ صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد مبارک میں سے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ہے جو بغداد شریف شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین اور نقیب الاشراف، وہاں سے آپ کو ڈائریکٹ خلافت، نہ صرف خلافت بلکہ جو ہے جیسا کہ میں ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتا ہوں وہ یوٹیوب پہ کہ جو ہے شیخ ہاشم الدین پیر گیلانی کے جو ہے بہت ہی قریب ہے، خلیفہ صاحب جو ہے بہت ہی قریب ہیں آپ کے دل کے اور بہت قرب میں ہے۔ آپ کا نام میراں بھی تھا، جو میزان کے وزن پر ایک فارسی کلمہ ہے۔ اس کے معنی قوم کا سردار ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ صوفیاء کے سردار تھے، اس لیے آپ اس نام سے پکارے گئے۔ آپ کو گنج سوائے بھی کہا جاتا تھا۔ گنج ایک فارسی لفظ ہے جس کے معنی خزانہ ہوتے ہیں۔ سوائے یعنی سوار۔ آپ صرف کامل ولی ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ بڑے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سید حسین قدسی کو شیخ قادر ولی کی ولادت سے پہلے ایک لڑکا تھا جس کا نام یوسف تھا، جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے والدین کو بہت رنج و افسوس ہوا۔ خاص کر والدہ کو بہت رنج ہوا کیونکہ کئی سال کی تمناؤں کے بعد اس کی ولادت ہوئی تھی۔ اس آستانے پہ ہم 85 سے آ رہے ہیں، اور یہاں سے ہم کو ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو بہت فیض حاصل ہو گیا، اور ہمارے پیر جو ہے وہ کامل پیر ہے، اور اللہ کرے ہمارے سر پہ ان کا سایہ ہمیشہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازے، اور ان کے ساتھ میں جتنے مرید ہیں ہمارے مرید بھائی، تمام امت محمدیہ عالم اسلام میں جتنے ہیں سب کو، اور جو بھی ان کے چاہنے والے غیر قوم والے، یہ در تو ایسا ہے کہ یہاں پر کسی بھی مذہب کا آتا ہے وہ فیض پا کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ان کو وہ بھی فیض پاتے ہیں۔ یہاں کا مجمع دن سے دن بڑھتے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ شاد اور آباد رکھے۔ ایک دن غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے اور اے میری بندی، تم دونوں کو یوسف کی وفات پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں اپنی مہربانی سے ایک لڑکا بخشا تھا جس کو انصاف کے ساتھ ہم نے واپس لے لیا ہے۔ اب تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ ہم تمہیں اس سے بہتر دوسری اولاد دیں گے جو صلہ و صدا، بہتری اور راستی کے لحاظ سے اس سے پہلے لڑکے سے بہتر ہوگا۔ تم اس کو میرا نام قادر سے منسوب کرنا۔ اس سے عجیب و غریب کرامتوں اور خوارق عادات کا ظہور ہوگا۔ جب ان دونوں نے یہ آواز سنی تو بہت خوش ہوئے۔ الحمدللہ 10 جمادی الاخر 910 ہجری مطابق 1517 بروز جمعہ تہجد کے وقت حضرت سید عبدالقادر شاہ الحمید گنج سوائے گنج بخش بادشاہ صاحب تولد ہوئے۔ میں قریباً 15 سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ۔ یہاں کے جو قادریہ بارگاہ شریف ہے، یہاں پہ ہر کوئی آستانے پہ آتا ہے اور اپنی مراد پوری کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ جو جتنے سال سے بھی آئے خالی ہاتھ نہیں گئے۔ یہ قادریہ گھرانہ ایسا ہے جیسے ہر کسی کی منت، ہر کسی کی مراد پوری کرتا ہے۔ اور حضرت قبلہ جو ہے سو ہم قریباً 15 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اب تک جو ہے سو اتنے کرامت، اتنے لوگ جو اضافہ ہوتے گئے یہاں پر، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ جو مسجد جو حاضہ ہے، بارگاہ ہے، بارگاہ شریف پہلے کیسی تھی اب کیسی ہے، اتنے لوگ خدمت بنتے گئے۔ یعنی حضرت قبلہ کے پاس جو ہے سو مریدین بڑھتے گئے الحمدللہ تعداد اتنی بڑھتی گئی کہ کئی دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنی مراد بات کریں۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔
जब रहम मादर में थे उसी वक्त से आपसे करामत सादर हुई। जब आप 7 साल के हुए तो बाकायदा मस्जिद जाने लगे। एक दिन मस्जिद में नमाज पढ़कर घर लौटे और माँ से खाना तलब किया। माँ ने कहा चावल ढोलकर चूल्हे पर रखा है, खादिमा आग लाने गई है, इसीलिए आते ही पका देती है। आपने कहा हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, खुदा हमको भूखा नहीं रखेगा। हांडी में देखो खाना आग के बगैर पका हुआ मिलेगा। माँ ने देखा तो खाना पका हुआ था, निकाल कर अपने फर्जंद को दिया। आपने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपसे बहुत सी करामतें सादिर हुई हैं जिनकी तफसील के लिए एक ज़ख़ीम किताब भी नाकाफ़ी होगी। साहब की ऐसी दरगाह है, कोई भी आते शफा होता है। खाली उन्होंने बात नहीं करे तो भी वो मकाम पे आके एक दिन रह के गए तो बहुत फ़ायदा होता है। और क्या बोलते तो मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बोले कि आप जाओ घर आपका तैयार हो जाता बोले, तो मैंने तैयार कर दिया बिला जो है सो घर 3 मंजिला घर बन दिया मैं। उनके ज़रिए से आँखों की उनकी दुआ से हो जाता बोले तो बस हो जाता, बस बाकी नहीं रहता। जो करे हज को जाते आप जाके आओ। मैं बोला मेरे को पढ़ना नहीं आता, जब सब आ जाता जाओ बोले। और मैं हज गया तो वहाँ मेरे ख्वाब में निगाह में आके इधर नहीं इधर बैठो बोले। खाने काबा में बैठा नमाज़ पढ़ रहा था। मैं बोला हज़रत को सलाम बोलो, मेरे तरफ से सलाम बोलो, दुआ बोलो तो अच्छी बात है बोल के मैंने सलाम दुआ किया। उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया। हमारे बाल बच्चे वगैरह हम तकरीबन 30-40 साल से आते हज़रत कने शफायत होती है और कोई बीमारी नहीं। कोई डॉक्टर को मैं 500 रुपये ने खर्च करा मैं ज़िंदगी में। और जो है तो जहाँ भी जो भी याद आता बोल दिए तो शफा हो जाती। ज़िले बिदर कर्नाटक के एक छोटे से मौज़े में हज़रत सैयद ख़ादर वली गंज सिवाय रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौसूम ये अज़ीम व शान दरगाह आज मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी मशहूर व मारूफ है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए ज़ायरीन अपने अपने दिल की मुरादें पाते हैं। हमा मंजिला इस दरगाह और इसके रूबरू खुले मैदान में हज़ारों ज़ायरीन के लिए जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो अपनी मिसाल आप होते हैं। अयाम उर्स 3 रोज़ तक ज़ायरीन के 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम दरगाह की जानिब से किया जाता है। मुंबई के ताजिर इकबाल मेमन व मोती मेमन और इनका पूरा ख़ानदान हज़ारों ज़ायरीन के ताम का इंतज़ाम करता है। इस मकसद के लिए दरगाह में मुस्तकिल डाइनिंग हाल है जहां मर्द व ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ामात किए जाते हैं। इस उर्स में सरकार बगदाद के सज्जादा नशीन भी तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ हर किस्म के लोग बिला लिहाज मज़हब तकरीबन तमाम लोग मौजूद थे। बड़ी खुशी हुई। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो संदल निकला हुआ है और संदल करीब मेन गेट के है। यहाँ पर भी तमाम लोग यहाँ बहुत ही पुरजोश तरीक़े से संदल के इस्तकबाल के लिए ठहरे हैं। हमारे पीर के ऊपर बहुत मोहब्बत है हमारे पीर हमारे को चाहते हैं। इससे बड़ी बात और क्या है। यहाँ की फजीलत बयां करने जैसी नहीं, हम बयां कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। समझो इनके तकरीश में है, आला है, अफजल है और रहेंगे हमेशा बारगाह हमेशा तरक्की पर रहेंगी सब। हज़रत सैयदना ख़ादर वली गंज सिवाय रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार नागूर शरीफ तमिलनाडु में है और बगदल की ये जो दरगाह है शाह मोहम्मद इदरीस अहमद ख़ादरी बगदली की अक़ीदत का इजहार है। बगदल ज़िला बिदर में कर्नाटक स्टेट में हज़रत ख़ादर वली गंज सवाई गंज बख्श बादशाह नागौरी रहमतुल्लाह का 460वां उर्स शरीफ का जलसा हर साल की तरह बड़ी ही शानदार तरीक़े पर मनाया जा रहा है। जिस जलसे में उर्स के जलसे में हज़रत पिराने पीर गौस आज़म दस्तगीर के पोतरे 70वें सैयद हाशिमुद्दीन अब्दुल क़ादिर मंसूर गिलानी ने
عرس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال یعنی ان کا ویلکم اسی طریقے سے کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے بغدل شریف کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کا ہجوم ان کے استقبال کے لیے اور ان کے ویلکم کے لیے ہزاروں کا ہجوم تھا۔ آپ ان کا دیدار کرنے کے لیے عاشق اولیاء، عاشق رسول، عاشق غوث ان کے لیے پرہجوم تھا، ان کے دیدار کر کے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور بغدل شریف میں لاکھوں کا ہجوم عرس شریف میں شرکت کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اللہ کے فضل کرم سے نوازے، اولیاء کرم کے ہدایتوں پر، حضور کی ہدایتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ عاشق رسول کے پروانے ہیں اور اولیاء کے دیوانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازتا ہے۔ جیسی عقیدہ ہے ویسا فیض، جیسا عقیدہ ہے ویسا فیض ملتا ہے۔ 1973 میں شاہ محمد ادریس احمد قادری نے ناگور شریف جا کر حضرت پیر و مرشد قبلہ سید محمد حسین عالم قادری اولاد قادر ولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے دست حق پرست پر سلسلہ قادریہ میں بیعت حاصل کی، اور تعلیم و تربیت کے بعد 1976 مطابق 1396 ہجری 27 جمادی الاخر چاروں طریقوں سے ان کو خرقہ خلافت عطا کیا گیا۔ 17 ستمبر 1982 بروز جمعہ بوقت عصر خلیفہ شاہ ادریس احمد قادری بغدلی کے پیر و مرشد کا وصال ہوا۔ پیر و مرشد کے وصال کے کچھ عرصے بعد الحاج شاہ خلیفہ محمد ادریس احمد قادری بغدلی بغدل شریف لوٹے، اور انہوں نے یہاں اس عظیم و شان درگاہ کی تعمیر کروائی اور ناگور سے لائے ہوئے تبرکات محفوظ کر کے حضرت سید قادر ولی گنج سوائے رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کا انعقاد کیا۔ بغدل شریف کی یہ درگاہ ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک مشہور ہے۔ یوں تو یہاں پر ہر سال عرس تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن 27 مارچ 2017 کے عرس شریف کی خاص بات یہ رہی کہ خان وعدہ حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر ہاشم گیلانی بغدادی بغداد شریف سے بغدل تشریف لائے اور عرس تقاریب کے دوران اپنے بصیرت افروز بیان سے لاکھوں زائرین کو مستفیض فرمایا۔ غوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني والحسيني آل بيت رسول الله. When he say to the awliya in his قصيدة مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي, he said to the awliya, all they have a place, but my place is still high and big because I am Al-Hasani wal-Husayni and my Nana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So today when we are here in this mazar and other mazars, it is for the blessing. And Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran said, وَابْتَغُوا إِلَى اللَّهِ الْوَسِيلَةِ, choose the way to the Allah subhanahu wa ta'ala. And because we are a Muslim and mu'min, we choose his awliya and as-salihin as a wasila for us to the Allah subhanahu wa ta'ala. So the meaning is, he's a prophet and he used to pray Allah subhanahu wa ta'ala everywhere, but he find the blessing place, and from there Allah subhanahu wa ta'ala bless him and accept his dua. ممبئی، چنئی و دیگر علاقوں سے آئے ہوئے مشہور قوالوں نے نعت و حمد سناتے ہوئے محفل سما سجائی۔ اور بعد نماز مغرب ہاتھی گھوڑے بگی کے جلوس میں سندل برآمد کیا گیا۔ خلیفہ شاہ محمد ادریس احمد قادری بغدلی نے
حضرت خادر ولی گنج سوائے رحمتullah علیہ کے 460ویں عرس شریف کی تقاریب کے دوران رسم صندل مالی انجام دیے. بعد ازاں زائرین کے لیے طعام کا انتظام کیا گیا. پھر اس کے بعد جلسہ عظمت اولیاء منعقد کیا گیا. عرس کی اس روح پرور تقریب کے مناظر بڑے اسکرین پر لائیو دکھائے گئے. ہندوستان میں بہت سے مقامات، گاؤں اور شہر ہیں جو بزرگان دین کی نسبت سے تقدس کا درجہ پاتے ہوئے ساری دنیا میں مشہور و معروف ہیں. ان بے شمار مقدس مقامات میں ایک چھوٹے سے گاؤں بگدل شریف کا بھی شمار ہوتا ہے، جو حضرت سید عبدالقادر شاہ ولی گنج سوائے گنج بخش بادشاہ ناگوری رحمتullah علیہ کی نسبت سے ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک کے مختلف ممالک میں مشہور و معروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے زبور میں اس نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ اولیاء کرام صالحین اہل اللہ کو ہم نے زمین کی وراثت عطا فرمائی ہے. یقیناً اولیاء اللہ کی بارگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بارگاہوں میں ایسے فیوز و برکات رکھے ہیں کہ یقیناً ان کی برکات روز بروز ہر روز ان کے فیضان جاری و ساری ہے. اور یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اولیاء کرام کو زمین کی وراثت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً یہاں حاضر ہونے کے بعد خانقاہ میں بغدل شریف میں یہ دیکھنے کے بعد یقیناً ایسا معلوم ہوتا ہے اور مشاہدات سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زمین کی وراثت عطا فرمائی ہے، یقیناً یہ زمین کے وارث ہیں اور اپنے غلاموں میں تقسیم فرما رہے ہیں وراثتیں. بگدل شریف ریاست کرناٹک کے ضلع بیدر میں مستقر بیدر سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں 31 سال قبل حضرت شاہ خلیفہ محمد ادریس احمد قادری نے اپنے پیر و مرشد سید محمد حسین عالم قادری ناگوری رحمتullah علیہ کے حکم سے آستانہ قادریہ کی بنیاد رکھی. اسی آستانے میں حضرت کے والد حضرت شاہ غلام احمد قادری کا مزار بھی ہے. ضلع بیدر ایسے بزرگوں سے آباد ایک ایسا علاقہ ہے جہاں حضرت نظامی بیدری، حضرت غلام مصطفیٰ عشقی اور حضرت محمود گاواں گنگا جمنی تہذیب امن و آشتی کا پیغام دیتے ہیں. ان کا یہ پیغام آج تک جاری و ساری ہے. میں بیدر کرناٹک بیدر سے جنیدیہ سلسلے کا سجادہ ہوں. جو بزرگ کا نام شاہ زین الدین کنج نشین جنیدیہ کی بغدادی ہے، بندہ نواز کے دور میں بغداد سے بیدر تشریف لائے. اس آستانے کا سجادہ ہوں اور پہلی مرتبہ یہاں پہ شرکت کیا. یہ جو بھی چیز یہاں پہ جو دیکھنے میں آئے بزرگوں کا فیض ہے. بزرگوں کی خدمات سے اللہ تعالیٰ اور سرکار کی نوازش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے اور آپ سب حضرات بھی بزرگوں کی خدمت کرنے سے ہی فیض پاتے ہیں اور دنیا میں بھی اچھا پاتے ہیں اور آخرت میں بھی پاتے ہیں. اور یہ خدمت ہمیشہ ہر دور میں جاری رہی. اللہ تعالیٰ اور یہ سب خدمت کو قبول کرے اور جناب حضرت ادریس صاحب کی عمر درازی عطا فرمائے ان کے اور ہر معاملات میں. علاقے دکن کے مختلف موضوعات میں بزرگان دین کے مزارات کا جال پھیلا ہوا ہے. ایسا ہی ایک موضع بگدل شریف ہے جہاں دکن ہی نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے سے یہاں تک کہ دیگر ممالک جاپان، انڈونیشیا اور سری لنکا سے عقیدت مند آستانے پر حاضری دیتے ہیں. عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹے سے موضع میں فرد واحد شاہ خلیفہ محمد ادریس احمد قادری بگدلی کا طویل و عریض ہما منزلہ عمارت تعمیر کرنے کو کرامات سے تعبیر کیا جائے تو مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہی تسلیم کیا جائے گا. واضح رہے کہ ہندوستان میں جتنے آستانے اور مزارات ہیں ان سبھی کے تعلق سے کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کو مبعوث فرما کر اپنی قدرت کے جلوے جو ظاہر فرماتا ہے تو جب جو قدرت کا جلوہ اگر نبیوں سے ظاہر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے اور وہی قدرت کا جلوہ
वलियों से ज़ाहिर होता है तो उसे करामत कही जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक वली कामिल अपने फैज़ान से तमाम अवाम अन्नास को मुस्तफ़िद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला से बारगाह में दुआ है कि मौला इन्हें हमेशा हमेशा और तरक्की अता फ़रमाए और इनके फैज़ान से माला माल फ़रमाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। बगदल के इस आस्थाने की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर हाज़री होने वाले हज़ारों ज़ायरीन व मोतक़दीन को क़ियाम व ताम और दीगर बुनियादी सहूलतें आस्थाने की जानिब से मुफ्त फराहम की जाती है। वो नीज़ यहाँ पर चंदा एहतियात के लिए कोई डब्बा या हुंडी नहीं है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि हुमा मंजिला इस आस्थाने की तोसी व तज़यीन व ज़ेबाइश के काम जारी हैं। मैं क़ादरिया नक्शबंदिया ग़ुलाम हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से मुझे फैज़ हासिल हुआ और मेरे पीर हज़रत सैयद खिल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से मुझे जो है ना बैत हासिल हुई और खिलाफत हज़रत अलीमुद्दीन चंदा शाह साहब से है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह को ना डर है, ना खौफ है, ना हिज़्न है, ना मलाल है। इन तमाम औलिया अल्लाह के सदक़े में हमारी जो ज़िंदगी चल रही है, अगर इनकी ग़ुलामी नसीब हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। और मैं तमाम आमतुल मुस्लिमीन के हक़ में दुआ करता हूँ कि वो जो है औलिया अल्लाह के आस्थानों से जो है अपने आप को जोड़ें और उनके जो है फैज़ हासिल करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवारे। आस्थाने की पहली मंजिल पर एक जानिब मस्जिद व मदरसा तो दूसरी जानिब ज़ायरीन के क़याम के लिए कमरों की कतार है। इस आस्थाने पर मुल्क की तकरीबन रियासतों और जापान, अमेरिका, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया व दीगर ममालिक से हज़ारों ज़ायरीन अक़ीदतमंद हाजिर होते हैं और यहाँ के इंतज़ामात देखकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ बगदल शरीफ में मैं उर्स के सिलसिले में आया हूँ। ये उर्स जो है हज़रत कादर शाह वली का उर्स 459वां उसका जलसा होने जा रहा है और यहाँ हर तरफ से लोग आते हैं। बैरूनी ममालिक से भी लोग आते हैं, जापान से आए हुए हैं, आपका श्रीलंका से आए हैं, मॉरिशस से आए हैं और अमेरिका से भी आए हैं। हम लोग खुद बम्बई से हैं, पुणे से हैं, सब लोग आते हैं। यहाँ पे एक ख़ासियत ये है कि यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ किसी से चंदा नहीं लिया जाता है। सब कुछ जो है हज़रत किबला हमारे करते हैं। हज़रत किबला का ये जो करम है, हर कौम के लोग आते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मराठा हो, लिंगायत हो, सब लोग आते हैं और यहाँ पे आके फैज़ पाते हैं। ये हमारे हज़रत किबला डॉक्टर इदरीस अहमद शाह कादरी का करम है। यहाँ पे हमारे लिए दुआएं करते हैं। आस्थाने की एक मंजिल ख़वातीन के लिए मुख्तस है, जहाँ इनके लिए एक मस्जिद भी है। असल आस्थाने से मुल्हिक थोड़े ही फासले पर आस्थाने का सिलसिला एक दूसरी इमारत है। तीसरी मंजिल पर वसी व अरीज समा खाना है। चौथी मंजिल कुशादा ताम खाना है, जहाँ टेबल और कुर्सियों को मुस्तकिल तौर पर कायम कर दिया गया ताकि ये ताम खाना तनावुल और ताम के सिवा किसी दूसरे मसरफ के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ग्राउंड फ्लोर पर बावर्ची खाना है, जहां से देगें लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल ताम खाने पर लाई जाती हैं। हज़ारों ज़ायरीन के ताम का इंतज़ाम मुंबई के ताजिर मेमन ख़ानदान के अफराद करते हैं। आस्थाने के ग्राउंड फ्लोर पर मदरसा है, जहां मिल्लत के नौजवानों को दीनी तालीम से आरास्ता किया जाता है। आस्थाना क़ादरिया और की जानिब से जो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और हर साल भी इंतज़ाम इसी किस्म से किया जाता है, जहाँ पर रूहानी औलिया अल्लाह का रूहानी मंज़र नज़र आता है। और यहाँ के जो हज़रत हैं इदरीस साहब, वो बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं
जिन्होंने बिला मज़हब व मिल्लत तमाम लोगों को एक जगह जमा करके अपनी रूहानी ताकतों से उनकी जो कुछ भी फैज़ान बफज़ल खुदा उनकी तरफ से होता है वो फैज़ पहुंचा रहे हैं। और हर साल हज़ारों आदमी बिला मज़हब व मिल्लत जमा होते हैं। इसके अलावा उलमा व मशाइखीन दूर दराज से हैदराबाद है, बीदर है, गुलबर्गा है, बम्बई है, मद्रास है, कलकत्ता है, कश्मीर है और दीगर मुकामात से अपने उनके रूहानी फैज़ से लोग फैज़ पाते रहे हैं। ये फैज़ ये हज़रत गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिले का है, वो आम होते रहेगा और इसके लिहाज से तमाम लोग इससे फैज़ हासिल कर रहे हैं। बगदल शरीफ के इस आस्थाने में हर माह मजलिस, ज़िक्र व सुलूक की महफिलें और मुख्तलिफ औक़ात में मजहबी और दीनी जलसों का इनेकाद होता है। नात ख्वां, मनखबत ख्वां, शोरा व अदबा और ख़वालों की हौसला अफजाई की जाती है। इस आस्थाने की दूसरी खुसूसियत ये है कि यहाँ दुआएं की जाती हैं। जादू टोना, नींबू नारियल की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। 459वां जो है उर्स शरीफ का ये जलसा है। सरकार खादर वली नागौर शरीफ दरगाह बारगाह खादर में आज यहाँ पर बगदल शरीफ में अज़ीमुश्शान पैमाना हज़ारों की तादाद में उशाखान औलिया मौजूद है। यकीनन औलिया की उर्स का मकाम, उर्स का मकसद ये है कि तमाम मुरीदीन मुतखिदीन में जो है एक ईमान का जज्बा पैदा हो, उनके अंदर जो है ना इबादत का ज़ौक़ हो और इबादत में शौक़ पैदा हो। इस गरज से जो है उर्स तमाम जमा होकर एक ईमान को जो है और कलमे को जो है फिर से जो है पुख्तगी के साथ अमल की तरफ राग़िब होते हैं। और यकीनन औलिया कामिलीन का ये सदक़ा है कि अमन का पैगाम पहुँचाने के लिए औलिया कामिलीन हज़ारों दूर से यहाँ आकर अपना मस्कन बनाए हैं। यकीनन ये बगदल शरीफ के अंदर रूहानी और जिस्मानी तमाम फैज़ान मिल रहा है और उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए इस्लाम जो है यहाँ पर इस्लाम की तालीमात देकर लोगों को जो है क़ुलूब को इस्लामी तालीमात से रोशन मुनव्वर कर रहे हैं। और मैं तमाम से ख्वाहिश करूँगा कि औलिया किराम के आस्थानों पे आकर अपने रूहानी फैज़ से अपने बातिन को पाक करें। एक आदमी जब जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर कन जाता है, इसी तरह रूह भी बीमार होती है तो रूह का इलाज सिर्फ अल्लाह वालों के आस्थानों में होता है। तो अल्लाह वालों से अपनी वाबस्तगी को मजबूत करें। इसलिए कलाम रब्बानी में के अंदर अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की जो आयत आई है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के औलिया वो हैं ना उन्हें खौफ है, ना उन्हें जो है गम है, ना उन्हें किसी चीज़ का जो है गम है। यकीनन अल्लाह के औलिया बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। इनके आस्थाने से हमें फैज़याब होना की ज़रूरत है। आस्थाने के मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों को तख़य्युस किए जाते हैं और ये सब काम हज़रत की निगरानी में अंजाम पाते हैं। अल्लाह वालों के आस्थानों पर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, अमीर हो के गरीब, हर तबके के लोग हाजिर होते हैं और रूहानी फैज़ पाते हैं। यहाँ 35 साल से आता हूँ। इससे पहले यहाँ पे कुछ ही नहीं था। यहाँ पे जब से यहाँ पे आता हूँ हर साल पाबंदी से आता हूँ यहाँ पे। अल्लाह की क्या मेहरबानी है, अल्लाह का क्या करम है नहीं मालूम। उन्हीं से जो भी आता आदमी यहाँ पे आता है। यहाँ पे कुछ ही नहीं था, यहाँ पे पहाड़ था खाली। यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ अल्लाह के फजल से हर चीज़ अच्छा रहा। मेरा ख़ानदान भी पूरा यहाँ पे आता। कभी कोई चीज़ की तकलीफ़ कभी नहीं। मैं आता हूँ, रहता हूँ, देखता हूँ, चले जाता हूँ। और किसी बात की कोई मुरीदों से हर 10 जान पहचान है। हल्के में आता हूँ, कभी हर जुम्मा आता हूँ, आके समय सुन के करके जो बातचीत करना है करके जाता हूँ। मगर कोई चीज़ के आस फ़ायदा हो, मेरा कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। हर साल आता हूँ मैं। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले प्रकाश निकम, IPS सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ज़िला बिदर ने अपनी अहलिया और दुख्तर के हमरा इस आस्थाने पर पहुंचकर हज़रत शाह खलीफा अलहाज डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अहमद साहब बगदली से मुलाकात की। इस मौके पर हज़रत ने SP और इनकी अहलिया को तहनीत पेश की और रोज़े मुबारक की ज़ियारत करवाई और दुआ की। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रकाश निकम साहब IPS, जो ज़िले बिदर के SP हैं और यहाँ पर दरगाह में दीदार के लिए आए हैं, हाज़िरी देने के लिए आए हैं, ज़ियारत करने के लिए आए हैं। मैं ख़ानदान के साथ, अफराद ख़ानदान के साथ, आइए उनके तासरात जानते हैं।
میں ہمیشہ اس درگاہ پہ آتا ہوں. ابھی آج کل مذہب کے نام پہ لوگ لڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آنے کے بعد سیکولرزم کیا ہوتا ہے، ہندو مسلم ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ میں بابا جی کو ملنے آتا ہوں. ہم بولتے ہیں کہ کون کیسی طرح سے دیش کی سیوا کرتا ہے، کون الگ ڈھنگ سے کرتا ہے. اگر آپ بابا کے کھیت کو اگر آپ ایک بار وزٹ کرو گے تو کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ پروفیسر لوگ وہاں پہ آ کے سیکھتے ہیں. یہ سب سے بڑی دیش سیوا ہے، سب سے بڑی یہ بولتے ہو کہ راشٹر کی سیوا ہے. اسی وجہ سے بھگوان کی طرح ہم ان کو دیکھ کے یہاں پہ آ کے بہت سکون ملتا ہے. ہمیشہ میں آتا ہوں اور یہاں کے درشن لے کے جاتا ہوں درگاہ. بیدر میں آپ جب سے آئے ہیں بہت ہی سکون کا ماحول ہے. ایسی کیا خاص بات ہے آپ کے پاس؟ ایسا کیا نیا جادو ہے جو اتنا پرسکون چل رہا ہے بیدر؟ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں. بیدر پہلے سے سکون بھرا سٹی ہے. ہم اپنا کام کرتے ہیں بس، اس میں کچھ ہے نہیں. پہلے سے ایسا کچھ بیدر جو بولتے ہیں نا کہ بہت ہی پیس لونگ اور سب مذہب کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں. پہلے سے اچھا ہے. میں آنے کے بعد وہ ویسا ہی کنٹینیو کر رہا ہوں. تو یہ درگاہ کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ درگاہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہندو مسلم بھائی چارگی دیکھنے کو ملتی ہے؟ درگاہ صدیوں سے میں جب بھی آیا، پہلے ہی جب ہمارا پورا بریفنگ ہوتا ہے تو یہ درگاہ ایک ایسی پلیس ہے بیدر میں، یہاں پہ کون سی مذہب کا آدمی آتا ہے اور اس کی منت یہاں پہ پوری ہوتی ہے. تو شانتی بھرا ایک الگ ہی ایک سندیش دیتا ہے درگاہ. اس لیے میں ہمیشہ آتا ہوں. میرے لوگ بھی ہمیشہ یہاں پہ آ کے ایک اچھا. آپ کس اسٹیٹ سے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے ہوں. مہاراشٹر سے ہیں؟ کرناٹکا کیڈر IPS. بہت بہت شکریہ. اس آستانے کی خصوصیت یہ ہے کہ تقاریب عرس شریف ہو یا ماہانہ ذکر و سلوک کی محفلیں، ہر وقت زائرین و عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے. ہزاروں لوگوں کے خیام و طعام کا معقول انتظام ہوتا ہے. عرس شریف کے موقع پر مشائخین بھی خاص تعداد میں شریک ہوتے ہیں. ناپیر گنیش لالو، میں حیدرآباد سے آ رہا ہوں. کافی آج کم سے کم بولے تو آج 20 سال سے آ رہا ہوں. سرکار کا ادریس کھپلا سرکار کی نظر کرم سے سب فتح ہے اور ہندوستان کے ہر کونے کونے سے آتے ہیں. مہاراشٹر، کرناٹک، راجستھان، جموں کشمیر، دلی، کلکتہ، سارے ملک سے آتے ہیں اور بغداد سے آتے ہیں. سعودی ریاض اور امریکہ سے بھی کافی لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سب فیض پاتے ہیں. جو سچے دل سے آتے ہیں ان کو سرکار نوازتے ہیں. اپنی ایمان پہ رکھ کے جو بھی منت مانگتے ہیں وہ ہر مشکل کو آسان پاتے ہیں. میں محمد سلیم اپنے دوستوں کے ساتھ میں ناگپور سے یہاں زیارت کے لیے آیا ہوں، اس عقیدت کے ساتھ میں کہ بابا سرکار ہماری سنیں گے اور ہم یہاں سے فیض اٹھا کے جائیں گے انشاءاللہ. ہم ایسی امید کرتے ہیں. سال رواں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے دیوان جی نے بگدل شریف کے اس عرس میں شرکت کی اور یہاں کے انتظامات کی ستائش کی. اس موقع پر حضرت نے مشائخین اور سرکردہ افراد کو تہنیت پیش کی. میں خواجہ سید غیاث الدین چشتی بارگاہ غریب نواز اجمیر شریف سے حاضر ہوا ہوں. یہاں بگدل شریف میں خانقاہ قادریہ میں گزشتہ 2-3 دفعہ بھی حاضری ہوئی ہے. عرس کے موقع پہ پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے اور یہاں کے انتظامات دیکھ کے اور لوگوں کا والہانہ عشق اور محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اور یہاں سے حضرت ادریس قادری صاحب مدد اللہ العلی کا فیض جاری ہے. لوگ ان سے دعائیں لے کے اور یہاں پہ لنگر کا انتظام بہت بہترین ہے اور یہاں پہ تعمیر کا بھی جو کام ہوا ہے بڑا اعلیٰ درجے کا ہوا ہے. اور ایک دنیاوی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روحانی خوبصورتی بھی ہے. یہاں لوگوں کو فیض مل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں. کون کس کے یہاں جاتا ہے؟ لوگ اپنے رشتہ داروں میں شادیوں میں نہیں آتے ہیں، لیکن یہاں لوگ عقیدت محبت سے کثیر تعداد میں حاضر ہوتے ہیں اور یہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں. میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں جو بھی حاضرین آتے ہیں ان کی سب کی مرادیں پوری ہوں اور حضرت کا فیضان جاری رہے اور جو بزرگان دین کا طریقہ ہے اور جو سلسلہ ہے اور جو تعلیم ہے وہ اس خانقاہ سے جاری رہے. یہی میری دعا ہے. بگدل شریف درگاہ آستانہ کے متولی حضرت خلیفہ محمد ادریس احمد قادری بگدلی دینی و دنیاوی ہر دو امور میں باکمال شخصیت کے حامل ہیں. آپ نے دینی امور کی انجام دہی کے لیے دنیاوی امور کو ذریعہ بناتے ہوئے دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آیات کی تفسیر آپ کی مذہبی شخصیت کے ساتھ ساتھ
एक मुदब्बिर, मुनज़्ज़िम और आला दर्जे के काश्तकार भी हैं। आप 200 एकड़ अराज़ी के मालिक हैं और अपनी अराज़ी पर अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, मेवाजात, फूल व फल के बशमुल दिगर अक़साम की फसलों की काश्त करते हैं। आपने 1 एकड़ अराज़ी पर ज़्यादा 150 टन गन्ने की पैदावार करके एक रिकॉर्ड कायम किया। इनकी इस रिकॉर्ड के पेश नज़र हुकूमत हिंद की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इनको बेहतरीन काश्तकार का अवार्ड व एजाज़ पेश किया। हज़रत के अस्तबल में अरबी नस्ल के घोड़े हैं जिन पर सवार हज़रत अपने खेत व खलियान जाते हैं। शाह खलीफा इदरीस साहब की कदमबोसी कर रहा है ये घोड़ा। तो हज़रत ये बताइए इस घोड़े के बारे में, इसकी खुसूसियात बताइए, क्योंकि इतने अच्छे करतब इसने दिखाए और इसने आपकी कदमबोसी की। अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ का दर्जा दिया है, लेकिन शुक्र है कि देखिए घोड़ा है जिसमें जो इंसान के जो किरदार हैं, जो आदाब हैं, इस घोड़े से सीखिए कि बुज़ुर्गों को ख़त्मबोसी करता है और हर एक को वेलकम की दावत देता है, वेलकम करता है और आपको मोबाइल की बात सुनता है, हर इंसान को की बात को समझता है और अच्छे बुरे को भी समझता है। अल्लाह ताला इस तरह से इस घोड़े में ऐसी नवाजिश दिया है कि बुज़ुर्गों के इश्क में नाचता है और झूमता है। जैसे इश्क नबी में कैसा है, औलिया के इश्क में इस तरह से झूमता है, उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। ये इसका नाम है जमजम। अच्छा, जमजम है, नाम है जमजम जी। ये इसकी पैदाइश इससे है, इससे पहले इसकी मां को बच्चे पैदा होते थे, मरते थे, लेकिन वो घोड़े वाले ने ये नियत की, सरकार अगर ये कुछ पैदा हुआ तो आपके चौखट पे छोड़ूंगा। वो ये चौखट पे छोड़ने के बाद उसके बच्चे जिंदा रहे और यहाँ इसका करिश्मा ऐसा रहा कि पूरी खुदा की कुदरत से इस तरह से इसमें ये इस तरह से उसकी सिफात इसके अंदर मौजूद हो के हर चीज़ अच्छे और बुरे को समझने की, बुजुर्गों को समझने की, बुजुर्गों की चौखट पे जाकर ख़त्मबोसी करता है। कितने बरस से आपके पास है? ये जो है ये 5वां साल का है, 5वां साल का बच्चा है। 5वां साल पूरा नहीं हुआ। ये अरबी घोड़ा है? ये अरबी घोड़ा है। इसका नाम जमजम है। जमजम बोलो तो ठहर जा, वैसे कर इस तरह से किया है, वो अल्लाह का करम है। और आप को देखिए ये जो इसकी आँख भी 2 किस्म के हैं, आँख भी 2 किस्म के हैं, ये वाइट, ये देख लीजिए, और ये काला। हाँ, ये कुदरती है जिसमें इसको देखते ही 5 को शैतान भाग जाता है। जी हाँ, इतनी बड़ी बरकत है, अल्लाह का करम है कि हम ये चौखट में अल्लाह ताला ने इस घोड़े को भेजा है और उसकी नवाजिश है। आप इस पर सवारी करते हैं? आप? जी हाँ, सवारी करते हैं। वो सवारी को खुद पेश होती है, सवारी के लिए वो खुद पेश होती है और दूसरे को नहीं बिठाती जी। ये दरगाहों की संदल के लिए इस तरह से रखे हैं, वो दरगाह के ऊपर छोड़ दिए सो है। वो उनके इश्क में नाचती है, कूदती है, मस्ती करती है और कोई दूसरी आदत नहीं है। हज़रत के पास बकरियों का गल्ला और भैंसों का डेयरी फार्म है। हज़रत काश्तकारी के लिए फर्टिलाइज़र के बदले कुदरती खाद का इस्तेमाल करते हैं। फसलों और डेयरी फार्म से जो आमदनी हासिल होती है इसको मदरसे आस्थाना के इंतज़ामात पर सर्फ करते हैं और इस आस्थाने पर हाजिर होने वाले हज़ारों अक़ीदतमंदों को कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि फूल भी आस्थाने में मुफ्त दस्तयाब होते हैं। मैं हज़रत कादिर वली गंज सवाई
नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 16 औलाद है। मेरा वालिद साहब का नाम है सैयद मोहम्मद हुसैन आलिम कादिर शत्तारी। हमारा पीर भाई है, पीर साहब है वो। हमारा पीर साहब हमारे पीर साहब के 2 खलीफा है। मैं पहले खलीफा और हमारा हज़रत हमारा भाई साहब अलहाज मोहम्मद इदरीस अहमद साहब कादरी दूसरा खलीफा है। उनके इरादे में सब बड़ी दरगाह हजरत के बरकत से सब तैयार हुए हैं। और कादिर वली का सालाना उर्स यहाँ है, वहाँ सालाना से हो गए। मार्च 10 में जो वहाँ हो गए, यहाँ सालाना उर्स का जलसा यहाँ है। हज़रत कादिर का दरसा है। वहाँ नागौर शरीफ में 3 दरगाह शरीफ है। नागौर शरीफ में बड़े दरगाह शरीफ है, बड़े दरगाह है। अजमेर कैसे है उससे है, तो साउथ इंडिया में नागौर शरीफ है। हस्ब रिवायत दरगाह आस्ताना खादरिया गंज सिवाय गंज बख्श बादशाह नागौरी महल्ला गढ़ी बगदल शरीफ ज़िले बिदर कर्नाटक में हजरत कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अहबाब गौसुल आजम कुतुबुल मजीद फर्दुल वहीद सैयद सादात हजरत सैयद अब्दुल खादर शाह वली गंज सिवाय गंज बख्श बादशाह नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के 459वें उर्स शरीफ का जलसा मुनक्किद किया गया। 28 रज्जबुल मुरज्जिब 1437 हिजरी मुताबिक 6 मई 2016 बरोज़ जुमा से शुरू होकर 30 रज्जबुल मुरज्जिब 1437 हिजरी मुताबिक 8 मई 2016 बरोज़ इतवार तक जारी रहा। उर्स शरीफ में बिला मज़हब यानी हर मज़हब के लोग इसमें शरीक किए हैं। यहाँ कोई ज़ात पात का कोई सवाल नहीं, सबसे प्रेम सबसे मोहब्बत है। ये मोहब्बत का गवारा है। अल्लाह ताला का करम है कि सरकार की मोहब्बत सबके दिल में है और उनके दिल में उनकी मोहब्बत है, सरकार की मोहब्बत उनके दिल में है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि इस दर से हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग फैज़ पाते हैं। ये देखिए हज़ारों का नज़ारा है इस दरबार में। कल को देखो कि इससे दलील ये मिलती है कि लोग हज़ारों लोग इस दर से फैज़ पा रहे हैं। शुक्र है कि इसमें हर तकलीफ शफा पाते हैं, हर दिल के मकसदे पूरे होते हैं और अल्लाह का करम है कि दीन के पाबंद होते हैं और हज़ारों लोग आते हैं, अपने दिल के मुरादे पाते हैं। ये 459वां उर्स शरीफ मनाया गया है और सब शरीक हुए हैं। जो अल्लाह ताला कादर वली इनके हाज़िरी को कबूल फरमाए, इनके हाज़िरी को कबूल फरमाए और इनके दिल के मकसदें हासिल करे। 6 मई बाद नमाज ईशा हाथी ऊँट और बग्गी और हज़ारों ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों पर मुश्तमिल जुलूस संदल आस्ताना के अखब से बरामद किया गया। आस्ताना के रूबरू शामियाने में हज़ारों अक़ीदतमंद टीवी के बड़े पर्दे पर इस रूह परवर नज़ारे का मुशाहिदा कर रहे थे। बाद अज़ां जलसे फैज़ान औलिया से उलमा व मशाइखीन ने बसीरत अफरोज़ खिताब किया। जलसे फैज़ान औलिया के इख्तिताम के बाद महफिल समा मुनक्किद की गई। ख्वाजा क़य्यूम अनवर साहब जिन्होंने यहाँ पर आकर इस नूरानी प्रोग्राम को और हैदर करार मौलाए कायनात की मोहब्बत में और हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये ज़िक्र को ये जो और लोगों तक पहुँचाने में जो एक नुमायाँ कारनामा अंजाम दे रहे हैं, हम आस्ताने खादिया बगदल शरीफ की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। खानखाही निज़ाम दरअसल एक ऐसा खालिस निज़ाम है जो खल्क़ की खिदमत और खालिक से रिश्ता जोड़ने का मौसिर ज़रिया रहा। नबी करीम के पैगाम को सहाबा कराम के बाद ताबईन कराम और तबा ताबईन व ऐमा व मुहद्दिसीन की जमात ने इंसानियत तक पहुँचाया। इनके बाद औलियाए उज़ाम की जमात ने रुश्द व हिदायत और इस्लाम के पैगाम को पहुँचाते हुए खानखाही निज़ाम को कायम किया। तबलीग व इशाअत के ऐसे मराकज़ कायम किए जो क़ुलूब को पाक व शफाफ करने के लिए ज़िक्र इलाही की मजालिस मुनक़िद करवाते हुए मुरीदीन को सुलूक की मनाजिल तय करवाते हैं।
मुबल्लिगीन इस्लाम ने बंदगान खुदा की रुश्द व हिदायत के लिए जो पुख्ता खानखाहें तामीर की, इनमें रहकर जो अहले ईमान दर्स व तदरीस हासिल करते हैं, इनकी ईमानी हरारत भी पुख्ता हो जाती है। यही वजह है कि औलिया अल्लाह जो कहते हैं इसको अल्लाह ताला पूरा कर देता है। कलाम रब्बानी में कई मुकाम पर औलिया अल्लाह की तारीफ और अज़मतें बयान की गई हैं। औलिया अल्लाह को कहीं सालिहीन कहा गया है और कहीं सादिकीन और कहीं मुतक़िदीन से मौसूम किया गया। इन्हीं औलिया में नुमाया मुकाम कुतुब रब्बानी हज़रत महबूब सुबानी सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बानी सिलसिले क़ादिरिया है। उन्हीं के खानवादे जिनका नाम नामी सैयदना क़ादिर वली गंज सिवाई बादशाही नागौरी शाह अब्दुल हमीद है। आपकी मज़ार मुबारक नागौर शरीफ तमिलनाडु में वाक़ है। आपके सिलसिले के हज़रत सैयद मोहम्मद शाह अल आलम क़ादरी नबीरा हज़रत क़ादिर वली के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले मुरीद व खलीफा ख़ास हज़रत शाह मोहम्मद खलीफा इदरीस अहमद क़ादरी बगदली ने सैयदना क़ादिर वली गंज सिवाय बादशाही नागौरी का चिल्ला मुबारक बगदल शरीफ में क़ायम किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बेपनाह फजल करम है कि उसने फजल करम से आस्तान क़ादिरिया बगदल शरीफ में जश्न मौलूद काबा व फैज़ान गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एहतमाम इंतहाई अज़ीमुश्शान पैमाने पर हो रहा है। ये काबिल मुबारकबाद है तमाम हजरात के लिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मुक़ाम व मर्तबा इतना बुलंद व बाला है जिसके बारे में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़े हैं। और शहर में जो भी आता है एक बार और दो बार दरवाज़े से जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ए अबू तराब, ए मट्ठी के बाप कहा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मुक़ाम व मर्तबा वो है, एक आप की वाहिद ज़ात है जिन्होंने सारी कायनात में हज़रत आदम से अब तक जितने इंसान पैदा हुए, तो कोई घर में पैदा होता है, कोई किसी दवाखाने में पैदा होता है, कोई मुकाम पे पैदा होता है, लेकिन मौलाए कायनात हैदर करार फ़ातिह खैबर अली मुश्किल कुशा को अल्लाह ने वो मुकाम अता फ़रमाया कि आपकी वालदा माजिदा बीबी फ़ातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ के दौरान आपको तकलीफ़ हुई तो आप काबतुल्लाह के दरवाज़े के अंदर चले गए और वहीं आपकी विलादत हुई। तो आपको इस हिसाब से आपको मौलूद काबा कहा जाता है। हज़रत अली की पैदाइश की जब फजीलत मालूम होगी, जब अली काबतुल्लाह में पैदा हुए और इल्म का सरकार फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, इसके दरवाजे हज़रत अली हैं, ये बहुत बड़ी फजीलत है और इनके बारे में कोई बयान कर नहीं सकते। ये अल्लाह ने ऐसे इल्म उनको अता किए हैं कि 9 इल्म तो उनको अता किया है अल्लाह ताला। 10 थे, एक 10वें में से एक हिस्से में पूरी कायनात है, लेकिन पूरा इल्म 9 हिस्से से 10वें हिस्से में भी इतना इल्म अल्लाह ताला इनको नवाजा है। ऐसा इल्म है कि समंदर को कहे तो समंदर उड़ जाता है, पहाड़ को कहे तो पहाड़ रेजा हो जाता है। ऐसी फजीलत है। अल्लाह का शुक्र है कि हमको हुजूर की उम्मत में पैदा किया और हजरत अली के आल की मोहब्बत हमको पैदा करे, आले नबी की मोहब्बत से हमको नवाजे, उनके आले और औलाद की मोहब्बत में अल्लाह ताला चलने की तौफीक इनायत फरमा दे कि जो इनसे मोहब्बत रखता है वो नबी से मोहब्बत रखता है, जो नबी से मोहब्बत रखता है वो अल्लाह से मोहब्बत रखता है। हम तमाम उलमा और मशाइख की इज्जत करे, उनकी ताजीम करे। ताजीम ही बड़ी दौलत है, अदब ही बड़ी दौलत है। अदब पहले सीखो, फिर बाद में चलना सीखो। पहले वजू सीखो, बाद में नमाज पढ़े। वजू करो, नमाज पढ़ो, इस तरह से दिल साफ करो, अल्लाह का नाम लो, नबी का नाम लो, उसमें बहुत बड़ी फजीलत है। इश्क नबी हो ना हो, खौफ खुदा ना हो, शरीयत का पाबंद ना हो, वो फैज नहीं।
शरीयत का पाबंद होना, तरीक़त पे ख़त्म रखना, मारिफत का इल्म हासिल करना वो ज़रूरी है। चिल्ले के क़याम से मुतालिक रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत सैयदना ख़ादर वली गंज सिवाय बादशाही नागौरी शाह अल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद व खलीफा ख़ास हज़रत शाह मोहम्मद इदरीस अहमद क़ादरी बगदली को खिलाफत से सरफराज करके इनकी ख्वाहिश दरियाफ्त की, तो हज़रत शाह मोहम्मद इदरीस अहमद क़ादरी बगदली ने कहा कि आपकी मोहब्बत चाहिए। इस पर पीर कामिल ने कहा कि तुम मेरे रूहानी बेटे हो, तुम जहाँ रहोगे वहाँ मुझको पाओगे, लिहाजा बगदल की सरजमीन पर आस्ताना क़ादरिया कायम करो। हर वक्त तसल्ली है, हर आन दिलासा है, हर वक्त तसल्ली है, हर आन दिलासा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुमको इसलिए भेजा गया ताकि तुम बुराई से रुको और रोको और नेक अमाल करो और करने की तरजीह दो। कुरान शरीफ में दूसरे मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात को और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। महफिल ज़िक्र दुआ के बाद उलमा व मशाइखीन उज़्ज़ाम के रूहानी बयानात मुकम्मिल शब जारी रहते हैं। हजरत क़ादर वली ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत के लिए गए, वहाँ के खादिमों को हुक्म हुआ कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जिलानी के औलाद में से ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, आप इनका इस्तकबाल करें। खादिमों ने अपने अपने घर सजाए, लेकिन सरकार ने सीधा गरीब नवाज की चौखट पर गए। दरवाज़ा बंद था, क़ादर वली जा रहे तो दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया। 3 रोज़ तक दोनों अंदर रहे, 3 रोज़ तक दरवाज़ा बंद। वहाँ का खादिम ये परेशान हुआ होकर खिड़की में से झांक रहा, उसका नाम गियासुद्दीन था। वो झांक रहा था तो देख रहे हैं खिड़की में से, तो वो दोनों बात कर रहे हैं, कुछ अल्लाह की नेमत दिए हुए खा रहे हैं। आपने एक हाथ बढ़ाई, एक फरिश्ता ने उनके मुंह में डाला कि उन्हें हमेशा के लिए बेहोश रहा, क्योंकि जो देखा वो बोलता नहीं, जो उनको देखा बोलेगा क्या, जो खुदा को देखा बोलेगा क्या। तो फिर 3 रोज के बाद बाहर आए क़ादर वली, जब फरमाते हैं ऐ बुजुर्गों, ऐ भाइयों, कि तुम ख्वाजा गरीब नवाज से गाफिल मत रहो। अल्लाह के दिए हुए खजाने नवाजते हैं और बख्शते हैं। हज़रत क़ादर वली का फरमान है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह से गाफिल मत रहो, वो अल्लाह के दिए हुए खजाने बख्शते हैं। हम गाफिल ना रहे, पक्के अकीदे से हम उनसे खुलूस मोहब्बत रखे और फैज़ हासिल करते रहे और चलते रहे। और ज़िक्र दुआ की इस मजलिस में हैदराबाद व दीगर रियासतों के उलमा व मशाइखीन और नात ख्वां हिस्सा लेते हैं। मजलिस समा में मुल्क के नामवर ख़व्वाल शिरकत करते हैं। आलम है